guys, and today we are here with another video of microeconomics. That is, this is our video 4 of microeconomics, and we will be dealing with consumer equilibrium. In the last video, what we did, we talked about the marginal utility, we talked about and discussed and explained about the law of diminishing marginal utility. And today we are talking about the consumer equilibrium. Now, which condition, which situation is this? This is a situation where consumer is getting maximum satisfaction with the limited income he has, and in no way he wants to change his way of existing expenditure. That means consumer को maximum satisfaction मिल रहा है, he is fully satisfied with the limited income he has, एंड उसको चेंज ही नहीं करना अपना वे जैसे वो स्पेंड कर रहा है मनी, क्योंकि वो उसमें सेटिस्फाइड है. दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अंडर व्हाट कंडीशन कंज्यूमर इज गेटिंग maximum satisfaction. So how to determine consumer equilibrium under law of diminishing marginal utility for a single commodity. Here we are simply talking about कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि ही इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. सो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर अ सिंगल कमोडिटी. अगर हम डिटरमाइन करेंगे ये किसके अंडर डिटरमाइन होगा, अंडर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज सेइंग, व्हेन ही विल बाय सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन, पर कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें बतानी है तो उसमें क्या आएगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है. सो कब डिटरमाइन करेंगे हम, कैसे करेंगे डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हेन ही विल बाय सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी. एक कमोडिटी की इतनी क्वांटिटी परचेज कर लें कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाए. सो ही विल बाय सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी which gives him maximum satisfaction. Now the number of units to be consumed by a consumer of a given commodity depends on two factors. What he is saying, कितने units वो consume करेगा एक particular commodity के, वो depend करता है two factors. और एक commodity के कितने units purchase करेगा वो depend करता है two factors पे, उस price of the commodity की कितनी price है, और दूसरा उस कमोडिटी से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. सो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड द एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट. उस कमोडिटी को परचेज करके उसकी यूटिलिटी, उसको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, हर एक यूनिट को परचेज करके उसको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है. नाउ बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल मीन्स द वन हु इज क्वाइट इंटेलिजेंट, वन हु इज अवेयर द मार्केट कंडीशंस. And being a rational consumer, he will be at equilibrium when the price paid for a commodity will be equal to the utility. That means the price he is paying for the commodity, it should be equal to the satisfaction he is getting. That is why a consumer is said to be at equilibrium only when the price for the commodity is equal to the marginal utility for that particular commodity. Here I have drawn the schedule and the graph to make you understand about the consumer equilibrium condition for a single commodity, where which law applies, the law of diminishing marginal utility applies under the consumer equilibrium in case of single commodity. Now I have told you which condition, where the consumer equilibrium condition is where price of the commodity is equal to marginal utility of the commodity. जितना प्राइस पे कर रहे हैं उतनी ही मुझे सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए. दैट इज माय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन. नाउ मैंने शेड्यूल बनाया है, इससे पहले एजम्पशन देख लेते हैं. एजम्पशन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, marginal utility of money is assumed to be constant, income of the consumer is assumed to be constant, the tastes and habits is assumed to be constant, and the consumer is rational. ये सारी कंडीशन सेम है मार्जिनल यूटिलिटी की. नाउ द यूनिट्स ऑफ, कोई सी भी ले सकते हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज, आइसक्रीम. तो यूनिट्स ऑफ कैंडी मैंने करा है 1 2 3 4 5 6.
नाउ प्राइस इज assumed to be constant. प्राइस हमें बताया हुआ है कि प्राइस ऑफ द कैंडी इज 10 पर रुपी. सो हम हर यूनिट में कितनी भी यूनिट लें हम सेम ही प्राइस होगी. प्राइस इज 10. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी. As you know, when I keep consuming more and more units of the commodity, my marginal utility from each successive unit goes on diminishing. Marginal utility का curve क्या होता है? Diminishing curve, because as I keep consuming more and more units of the commodity, so my marginal utility goes on diminishing. When I'm paying price 10, मेरी marginal utility 20 है अभी. अब I keep consuming more and more, तो मेरी marginal utility कम होती जाएगी. 20 से 16, 16 से 10, 10 से 4, 4 से 0 एंड फिर माइनस में आ जाती है एक पॉइंट पे. प्राइस तो हमें पता है कांस्टेंट है एंड 10 गिवन है. अब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट है एंड इट इज गिवन ₹1. अब देयर इज अ फॉर्मूला MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? गिवन है, कांस्टेंट है 1. सो दैट मीन्स अगर ये तो 1 ही हो गया तो कंडीशन सेम ही हो गई ना, ये वाली MUX इज इक्वल टू PX, राइट. तो 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी. अब मुझे 20 यूटिलिटी मिल रही है तो मीन्स कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 20. तो 20 अपॉन 1 इज 20. सो MUX अपॉन MUM, राइट. 60 अपॉन अगेन 1 इज इक्वल टू 16. सो MUM भी क्या आएगा? सेम आएगा जितनी MUX है, राइट. अब हम देखेंगे कि क्या हमें पता चल रहा है. रिमार्क. अब इसमें MUX ज़्यादा है प्राइस से, इस कंडीशन में भी MUX ज़्यादा है प्राइस से. सो ये आपको लगता है एक कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी? नो. MUX ज़्यादा है प्राइस से, सो व्हाट विल हैपन? कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन. Now here price is equal to marginal utility. जितना प्राइस वो पे कर रहा है कमोडिटी का उतना ही उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. दैट मीन्स यही हमारी कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन है. सो हमारी इधर वेरीफाई हो जाती है. MUX इक्वल टू PX है. ना हम नीचे जाते हैं, देखते हैं इधर मार्जिनल यूटिलिटी कम है प्राइस से, इसमें भी कम है और इसमें तो नेगेटिव हो जाती है. दैट मीन्स मेरे प्राइस ज़्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी से. सो कंज्यूमर क्या करेगा? अपना कंजम्पशन कम कर देगा और कहाँ पे आ जाएगा? इस कंडीशन पे. आई होप यू गेट इट. नाउ लेट्स कम टू दी ग्राफ. ग्राफ क्या है? ग्राफ में y साइड है MUX, x साइड है यूनिट्स ऑफ कैंडी. अब हम क्या करेंगे? कैसे ड्रॉ करेंगे? ये कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो रही है? 10 एंड 10 पे. सो पहले प्राइस हम क्या करेंगे? प्राइस हॉरिजॉन्टली कर देंगे एट द यूनिट ऑफ 10. मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व ड्रॉ करेंगे, डिमिनिशिंग कर्व. एंड कहाँ पे इक्वल होएगा? जहाँ पे प्राइस एंड MU मीट कर रहे हैं. यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन है, राइट. यहाँ पे क्या पॉइंट है? यहाँ पे MU 0 हो रहा है. सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. इससे नीचे नहीं जाएगा कंज्यूमर. एंड दिस इज इट. नाउ इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 है. इसका दूसरा रिवर्स क्या हो सकता है? MUM इधर आ जाएगा एंड PX कहाँ है? नीचे चल जाएगा. सो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, विच मीन्स जितनी यूटिलिटी है उतना ही प्राइस में पे करूँगी. 10 यूटिलिटी मिल रही है तो 10 प्राइस पे करूँगी, तो क्या हो गया? 1. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या आ गया? 1. I hope you have understood this. I decided that मैं कम टॉपिक लूँगी so that you can easily understand and write down. You can easily write down in your notebooks. And in next class, I will be taking indifference curve analysis. And if there is any problem, do ask me, and I would love to solve them. Okay, till then, bye bye. Take care. Have a nice day. If you do like my video, kindly subscribe and like my channel. Thank you.